body with respect to time. Change in position of the body. Position of the body with respect to time. फिजिक्स में जब भी हम बात करें तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम के अकॉर्डिंग ही हर चीज कैलकुलेट होता है. तो अब इसमें एक वर्ड आया पोजीशन. पोजीशन मीन्स कि सपोज अगर मैं कहूँ कि दिल्ली बहुत दूर है, बट कहाँ से? दिल्ली बहुत दूर है, कहाँ से? तो देयर मस्ट बी ए रिफरेंस जहाँ से दिल्ली दूर है ना. दिल्ली से दिल्ली तो दूर नहीं हो सकता ना. सो reference point or origin must be to find out the position of body. Reference point or origin must be there. Suppose this is the position of the body. Position of the body. So it is x, y, z, 3 coordinate, where what is the distance from x coordinate, what is the distance from y coordinate and z coordinate. This is also known as the frame of reference. The reference point is very necessary. Origin बहुत जरूरी है रिस्पेक्ट बताने के लिए कि कितनी दूर है, कहाँ पर है. ठीक है. तो पोजीशन वही बताता है कि रेफरेंस पॉइंट से व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. नेक्स्ट मोशन अगर कहेगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और टी टाइम में ये क्या पोजीशन हो गया, इसका पोजीशन ये गया. तो पोजीशन देखो इस पॉइंट का जब हम कोऑर्डिनेट लेंगे तो एक्स वाई जेड व्हाटएवर कोऑर्डिनेट, अगर 2 कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स और वाई, तो ये कोऑर्डिनेट अलग होगा और ये कोऑर्डिनेट अलग होगा. इट मीन्स द पोजीशन इज चेंज. तो पोजीशन इज द चेंज विद इन द डेल टाइम टी. सो वी कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ओके. There are 2 types of motion: rectilinear motion, and other is circular motion. Rectilinear motion, if a body moving along a straight line, then it is known as rectilinear motion. And if a body moving in a circular path, कोई बॉडी है ये मूव कर रहा है A to B in a circular path, it means there is a center and it is inclination angle must be there. So this type of motion is known as the circular motion. उसके बाद distance travel और path length. path length and or distance travel. The difference between the initial and final position, that is known as distance. The difference between initial and final and initial. Suppose मैं इसको F लिख देती हूँ, ये I लिख देती हूँ. This is known as the path length or distance travelled by the body. A and B, there is 2 position. A body is moving, suppose in this direction. So this is the path length, and this is also path length. Suppose a body A to B and B to C. First of all, the body travel from the point A to B and then B to C. Then the distance is equal to AB plus BC. Okay. But displacement की अगर बात करें तो this displacement is the shortest distance between the final position and the initial position. Displacement is the
final position and initial position. This is the shortest distance and it may be negative, it may be zero, and it is a vector quantity, while distance is scalar quantity and distance is always greater than zero or equal to zero. But displacement may be zero, may be negative, may be generally displacement generally less than the distance traveled by the body. यहाँ पे आपने देखा कि suppose straight line है, a body is P passing travel at the position P and it travel to Q and it returns back to R. Then PR is the displacement. Displacement is equal to PR and distance is equal to PQ plus RQ. Right? Another the example, if a body at P and it travel at Q and return back at the R position. If the initial position is this is the initial position, and this is final position. There in this case the displacement is negative because the initial according to definition the final position minus initial position. Suppose this is the minus 10 distance and travel the distance whatever यहाँ तक आया, तो ये अगर जीरो ऑरिजिन अगर लेते हैं दिस इज माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ गया, बट डिस्टेंस अगर कवर करें तो सपोज 20 मीटर, तो डिस्टेंस अगर कवर करें तो 20 प्लस 20 40 एंड देन 10 50, डिस्टेंस 50 हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज माइनस 10. तो आपके जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये 11 के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो एक तो है कि ये निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट ये जीरो और पॉजिटिव ये होगा, निगेटिव नहीं हो सकता. ये डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी. What is scalar and what is vector? This is the new term. तो वेक्टर क्या है? जिसके साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. मतलब 5 किलोमीटर चला टुवर्ड्स which direction it is not given in the distance, but in the displacement. If a body travel 5 kilometer toward west, then it is displacement. Okay, it must be shortest and there must be direction also. And the definition, this is S by T and this is displacement. This is the shortest distance. This is shortest and this is the pathway. दोनों का यूनिट एक ही होता है, shortest distance between initial final to initial position, और ये पाथ लेंथ तो फाइनल और इनिशियल का हो गया. उसके बाद है रेगुलर, सर्कुलर, यूनिफॉर्म मोशन. Uniform motion if a body travel equal distance travel in equal interval or time. If a body travel in equal interval in equal distance in equal interval or time, then it is known as the uniform motion. मतलब 5 किलोमीटर अगर चला, 5 सपोज ऐसे आ रहा है, अगर S और T का ऐसे आ रहा है, तो देखो कि ये इतने घंटे में कितना यूनिफॉर्म का जब भी आएगा यूनिफॉर्म मोशन का, तो S और T लेंगे तो इक्वल
चलेगा ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली, ये एस भी डेल एस होगा, ये डेल एस होगा कितने, डेल टी टाइम में और डेल टी टाइम में इक्वली चलेगा। दिस इज नोन एज द इक्वल, नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में है क्या, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल डिस्टेंस बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों में से किसी एक को अनइक्वल कर देना और एक को इक्वल करना। एक इक्वल डिस्टेंस लिखा है तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर अनइक्वल डिस्टेंस लिखते हैं तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर देना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं स्पीड। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ change of distance is called speed. Speed is a scalar quantity. Scalar quantity. The unit of speed is meter per second and formula speed का हो गया, speed is equal to distance by time। रेट जैसे ही हम फिजिक्स में बोलते हैं कि रेट, किसी भी चीज का रेट अगर लगाना हो तो उसमें टी से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये स्पीड हो गया। अब हम एवरेज स्पीड की बात कर लें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस travel by the body by total time taken। इसको थोड़ा सा ये बता दें, क्योंकि सपोज ये बॉडी अगर S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया T1 टाइम में प्लस S2 टाइम ट्रेवल, S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया T2 टाइम में, तो ये एवरेज स्पीड इसका हो जाएगा S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2। इसको बुक में जो है लिमिट के फॉर्म में डेल एस और डेल S1 और डेल D1 के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। डेल मतलब होता है कि ये लिमिट फॉर्म है, या DS के फॉर्म में लिखा हो, अगर DS के फॉर्म में तो इट इज द डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशिएशन का क्लास आप कर लोगे, डिफरेंशिएशन का स्पेशल मैं एक वीडियो भी लगा दूंगी, आप देख लेना। उसके बाद वेलोसिटी जो है वो स्पीड के जैसा ही है, बट इसमें क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। So rate of change of velocity is denoted by v generally, and rate of change of the displacement by time, ये हो जाएगा। अब ये जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसके यूनिट ऑफ वेलोसिटी meter per second, and it has direction and as well as the magnitude. It may be negative, positive, 0, but speed जो है वो
वो निगेटिव नहीं आ सकता। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल रहता है। एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम बाय द बॉडी। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। सपोज इसमें जैसे एक सर्कुलर पाथ है और दिस इज द सेंटर एंड द बॉडी एट ए एंड अनदर दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। सपोज दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। द बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, A to B, then what is and within the time, suppose 2 hour, time is given 2 hour, 1 hour में यहाँ तक पहुँचता है, फिर 1 hour में यहाँ तक पहुँचता है, 1 hour यहाँ और 1 hour में। तो what is average speed? तो what is average speed? स्पीड में क्या करेंगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में क्या किया ये पाई आर बाय 2, ये होगा इसका स्पीड। बट अगर वेलोसिटी की बात करें 2 आवर को, मैंने ये लिखा नहीं है, ये जनरल फिजिक्स में क्या करते हैं कि सेकंड में करते हैं, तो इसको करते हैं ना, अभी मैंने इसको आवर में ही ऐसे समझाने के लिए रख दिया। लेकिन वेलोसिटी अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड दिस इज 2r. So the velocity is equal to 2r by 2 and r. R is the velocity, but while the speed is pi r by 2. अगर आप स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, स्कूल जाते हो 8 o'clock और 2 या 3 o'clock आप घर पहुंच जाते हो, ठीक है। विदिन 5 आवर आप घर से गए स्कूल और स्कूल से वापस घर। विदिन द 5 आवर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट अगर डिस्टेंस की बात करें तो वट एवर द पाथ लेंथ एंड 2 टाइम ऑफ द पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि विदिन दैट टाइम देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। Velocity, then instantaneous velocity. Instantaneous velocity या instantaneous speed. At any instant, suppose this is the curve and you have to find out the speed between t1 and t2 time, or this is the point P point पे suppose you have to find out the velocity at this instant, ठीक है। डेट टी टाइम पे आपको कुछ टाइम इंस्टेंट पे निकालना है, तो क्या करोगे, आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे और इस स्ट्रेट लाइन का एंगल स्लोप आप निकाल लोगे, स्लोप या इसको बोलते हैं टेंजेंट। कितना स्लोप, और स्लोप क्या हो जाएगा, पी बाई बी टेंजेंट टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा स्लोप निकालोगे, स्लोप विल गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल v बाई डेल t और dv बाई dt। तो जो भी व्हाटएवर ds बाई dt, तो ds बाई dt अब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे और एंगल बनाएंगे और इसका जो है जो भी स्लोप आएगा उस स्लोप को हम ड्रा करके निकाल देंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ
change of velocity, rate of change of velocity और speed, दोनों ही हो सकता है. Speed, rate of change of velocity or speed, that is called acceleration. Acceleration is denoted by A. A is equal to rate of change of velocity, v minus u, where v is final velocity and u is initial velocity and t is time taken by the body. You are familiar with initial and final velocity in 11th class NCERT. Initial velocity को v minus v0 से लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Acceleration में एरो लगा देंगे because it is a vector quantity and the unit of acceleration is meter per second square. अगर वेलोसिटी होगा तो निगेटिव भी आ सकता है. अगर अब ये देखो कि एक्सेलरेशन s और t का ग्राफ अगर हम खींचे, v और t का ग्राफ, ये और v और इधर t, अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है इट मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है इसका मतलब है कि निगेटिव एक्सेलरेशन है. अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है इसका मतलब जीरो है. अब एनसीईआरटी में ये एक और दिया हुआ है क्या कि कर्व में दिया हुआ है ये ऐसे और ऐसे, तो इसमें x दिया हुआ और t दिया हुआ है. ठीक है, v नहीं है, वो x और t है. एक एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग और एक एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन पे भी दिया हुआ है. काइनेमेटिक इक्वेशन आप जो पहले पढ़े हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं इसमें, या काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है कि जो इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू u प्लस at और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as प्लस u स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर. इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन तो डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है फर्स्ट का, मैं कर रही हूँ फर्स्ट का कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v माइनस u, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो at इज इक्वल टू v माइनस u, सो यू कैन राइट at प्लस u, दैट इज v, और v इज इक्वल टू एन इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, u को v0 में लिखा है एनसीईआरटी में. ठीक है, पहला डेरिवेशन हो गया. दूसरा ये देखो ग्राफिकल मेथड से दिया हुआ है एनसीईआरटी में. Let us consider a body moving with velocity u, and final velocity is v after time t, and the position is a to b, and this is c, and we draw a perpendicular that is. So the distance traveled by the body, that is the equal to the area of the graph. This graph can be divided into two parts. There is a right angle triangle and there is a rectangle. This is the derivation of second. Let us consider, ये सारी चीजें आप लिख लेना. Let us consider a body moving from initial velocity u and final velocity v within the time t and uniform acceleration. अब मैं क्या करूँगी, distance travel as is equal to area of the graph, area of OABDC, area of AOBDC, that is area of ABD plus area of ABCO. This is triangle and this is rectangle. Area of right angle triangle, that is half into base into height. Half into base means t, because this is also equal to t, right? Right angle है OC is equal to AD होगा t, and
माइनस यू, वी टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो वी माइनस यू प्लस एल इंटू वी यू इंटू टी, और एस इज इक्वल टू, अब ये इस इक्वेशन में देखो कि यहाँ पर कहीं पर भी v ये t नहीं है, देख रहे हो, t is not present in this equation, so we will eliminate the t from this equation by and v minus u by k, that is equal to t. So we will substitute the value of this from equation first to v minus u by k and v minus u plus v minus u by k and u. Is that clear? और s is equal to क्या लिख सकते हैं, देखो v minus u by 2a थ्रू आउट कॉमन है, मैं v minus u by a थ्रू आउट कॉमन ले लिया और बच गया v minus u by 2 plus u, और s is equal to v minus u by a and LCM to v minus u plus 2u, और s 2as लिख दो, 2as is equal to, यहाँ पर देखो v minus u और ये बचेगा v plus u, a plus b into a minus b, that is v square minus u square, a square minus b square हो जाएगा 2as, अब इसको अरेंज कर दो, क्या v square is equal to u square plus 2as, this is the required equation. Okay, is that clear? नेक्स्ट करने के लिए मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट में यहाँ तक जो है सिमिलर डेरिवेशन होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ये सारे चीज सेम होंगे, बट नेक्स्ट वाला में क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए टी स्क्वायर। यहाँ पर देखो कि कहीं पर भी v नहीं है, इसका मतलब हमें v को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो s इज इक्वल टू हाफ, और a है तो v माइनस यू दैट इज 80 लिख सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 लिख सकते हैं, और 80 यूज करेंगे t इंटू a, और ut को एज इट इज ut लिख देते हैं, और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सिर्फ ये देखना है कि मुझे क्या किस चीज को रखना है और किस चीज को एलिमिनेट करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्री फॉल। इफ ए बॉडी मूविंग अंडर द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, फ्री फॉल। इफ ए बॉडी मूविंग अंडर द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज g, then it is known as the free fall. If a body moving under the acceleration or influence of the acceleration due to gravity, then it is known as free fall. Free fall में जब भी किसी बॉडी को ऊपर से नीचे अगर करेंगे तो acceleration due to gravity पॉजिटिव होता है, बट अगर किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे तो नेगेटिव g हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ पर acceleration due to gravity ये चेंज हो जाएगा g, अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसको हम लिखेंगे h एंड ut। किसी भी बॉडी को अगर ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया और ये हो गया हाफ gt। अगर ये बॉडी ऊपर फेंका जाता तो h इज इक्वल टू माइनस हाफ gt हो जाता है। सिमिलरली s इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर v स्क्वायर होगा बट u स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और ये 2as की जगह पर हो जाएगा 2gh। अब ये अगर नीचे जा रहा है तो प्लस होगा, अगर ये माइनस, अगर ये ऊपर होगा तो 2gh होगा। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है बच्चे, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर ये माइनस प्लस की गलती हो गई तो आपके न्यूमेरिकल
गलत हो जाएगा। v इजिकल टू यू प्लस 80 होता है, तो v इजिकल टू यू तो 0 हो गया, तो हो गया माइनस जी टी। तो ये सारे फॉर्मूले आपके हो गए। नीचे से अगर हम थ्रो करेंगे तो जनरली u 0 नहीं होगा। अगर किसी बॉडी को नीचे से हम फेंकते हैं तो किसी स्पीड से फेंकना ही होगा। तो ऐसे केस में h इक्वल टू माइनस जी टी नहीं हो सकता, ये जो भी माइनस नहीं हो सकता, ये प्लस ही होगा। अब ये देखो कि क्या बोल रही थी मैं कि किसी बॉडी को अगर नीचे से फेंका जाता है तो ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v इक्वल टू जी हो जाएगा। जैसे ही ये मैक्सिमम v0 जैसे ही होता है उसके बाद ये गिरना शुरू होता है, और यहाँ पर u मैक्स, ये जो फाइनल है जहाँ गिरा, ये मैक्सिमम होगा जब ये सरफेस पे होगा। और u जो है जनरली धीरे 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 करके ये डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके ये कब डिक्रीज होकर 0 जब हो जाएगा, जब ये 0 होगा तो ये फिर गिरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब किसी पत्थर को अगर ऊपर से नीचे फेंका जाए, इसमें क्या है, जितना उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही उसको नीचे गिरने में भी टाइम लगता है। किसी बॉडी को अगर किसी हाइट से अगर ड्रॉप किया जाए तो एक बहुत बड़ा बॉडी है और एक छोटा बॉडी है, तो दोनों को गिराया गया तो किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये जल्दी गिर जाएगा। जनरली बच्चे बोलेंगे देर सीख रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने देखा फ्री फॉल में कि कहीं भी मास का जिक्र नहीं है इक्वेशन में। अगर एयर रेसिस्टेंस ना हो तो ये दोनों एक ही टाइम में गिरेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे के वीडियो 11th और 12th का वीडियो